Hey guys, I hope you guys are doing great. Well, our guest today is Nayab Shah. She's holistic health practitioner. So let's just talk with her and ask her how she really helps people to sort out their problem. So how are you, Nayab? Assalamualaikum, I'm good. How are you, Farhan? Walaikum assalam. I'm good, alhamdulillah. So let's just start the interview. Okay. Alright, to begin with, let me ask you a very basic and a simple question. Now, what is life coaching? Life coaching is a field in which clients or the people approach a life coacher and they make things easier for them, and they get their solutions in a very with very clarity. Or so it's a proper field just from life Right. coaching. So what is the difference between life coaching and counseling skills? Okay, counseling is basically related to the mind, and life coaching is related to the circumstances of the client. दोनों different चीज़ें हैं, but obviously दोनों का एक aim यही है कि जो भी बंदा approach करता है life coach को या therapist को, कि उसके solutions और उसके issues sort out हो. Okay. So basically दोनों की fields different हैं, but they works for the betterment of the person. Okay, now when it comes to the life coaching, so obviously it's more or less related with the brain. जी. So what is basically the mind sciences? Is there any connection between the life coaching and the mind sciences? Basically, mind sciences is a field. इसका origin हुआ था 1990 में, जबकि different लोगों ने इस पर रिसर्च की थी और उन्होंने ये नोटिस किया था कि जितने सक्सेसफुल लोग रहे हैं दुनिया में उनका थिंकिंग पैटर्न वर सेम. Okay. और उस पर उन्होंने फिर इस चीज़ को सोचा था, इस चीज़ को मोर डिस्कवर किया था कि वाई इट इज़ सेम. उसमें ये चीज़ निकली थी कि जो है उनका बेसिकली थिंकिंग पैटर्न सेम था, और उन्होंने फिर उस चीज़ को अडॉप्ट कर लिया और उस चीज़ को पे मोर रिसर्च करके इसको माइंड साइंसेस का नाम दे दिया था. Okay. जिसमें इन्होंने डिफरेंट चीज़ों को सीक्वेंसली प्लान किया था कि वो किस तरह से सोचते थे. उन चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं डिफरेंट लोगों पे, डिफरेंट उनकी मेंटल कैपेसिटीज़ को इन्हांस करते हैं, और इससे फिर हम उनके सॉल्यूशंस का उनको बताते हैं. So we've already talked about what is the life coaching, counseling and mind sciences. So my next question is, what is not the life coaching and what is not the mind sciences, or what is not the mind-based training? Okay. बेसिकली वी एज अ नेशन हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा. वी गेट सजेशंस फ्रॉम द पीपल हु आर एल्डर. हम समझते हैं बिकॉज जस्ट वी हैव द रिलेशन विद देम, तो हम समझते हैं कि ये हमें बेस्ट पॉसिबल अप्रोच बताएंगे फॉर आवर इश्यूज. बट ऐसा नहीं होता. जो लाइफ कोचर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, जो थेरेपिस्ट हैं, इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि उनको सिचुएशंस, इनकी केस स्टडीज होती है, इनको समझाया जाता है कि आपने क्लाइंट्स को कैसे डील करना है. बट वी आर वेरी इमोशनल नेशन. हम अपने इश्यूज को उन लोगों से पूछते हैं जो कि ऑथेंटिक नहीं होते, जिनके साथ हमारा इमोशनल कनेक्शन होता है. Maybe they are also disturbed in their life. एग्जैक्टली. बट हमारा बेसिकली हम उनको आइडियलाइज कर रहे होते हैं क्योंकि वो हमसे बड़े हैं. बट उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती कि लाइक वो हमें कोई प्रैक्टिकल अप्रोच बताएंगे. हो भी जाती हैं समटाइम थिंग्स वर्क, बट ये कोई ऑथेंटिक अप्रोच नहीं है. So it means we should understand that there is a difference between the physical age and the mental age and maturity. It doesn't mean that if a person is older than you, so he's also more mature, he has really good decisions for you, good suggestions for you. So it's not necessary, and you It's should not consult a necessary. life coach. I believe कि जो the person who is trained, जिसको प्रॉपर एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं, जिसको प्रॉपर नॉलेज होता है, दैट पर्सन इज ऑथेंटिक. Okay. ऐसे नहीं है कि कोई भी लाइफ कोच बन सकता है, कोई भी थेरेपिस्ट बन सकता है. यू हैव टू डू डिफरेंट सर्टिफिकेशन, डिफरेंट एक्सरसाइजेस, डिफरेंट प्रैक्टिकल थिंग्स, डिफरेंट केस स्टडीज, एंड देन आपको इन इश्यूज की समझ आती है, आप उसको रिलेट कर सकते हो. इंस्टेड ऑफ अ पर्सन हु इज सिटिंग एट योर होम एंड आपको सिर्फ उसके साथ इमोशनल कनेक्शन है और आप उसकी एक्सपर्ट एडवाइस को समझ रहे हैं कि मेरे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे. ये एक हमारे पास अनलकीली पाकिस्तान में एक ये सिचुएशन है कि लोग चीज़ों को, जिनके साथ उनके इमोशनल या कोई फैमिली रिलेशंस होते हैं, आप उनकी चीज़ों को प्रेफर करते हैं. हालांकि साइंस और स्टडीज़ ये कहती हैं कि जो पर्सन ऑथेंटिक है वो या क्वालिफाइड है, सर्टिफाइड है, वो आपको बेहतर तरह से गाइड कर सकता है. Okay, talking about the mind sciences, I've also heard about a term that was neuro-linguistic program. जी. So what is neuro-linguistic program in the mind sciences?
न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम एक बहुत बड़ी टर्म है। इसमें हम ये करते हैं कि जो भी लोग हैं हम उनको ये समझाते हैं। पहली बात ये कि जो भी सपोज किसी ने किसी के साथ कोई किसी का इशू है तो आप बाहर के एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। हम उनको ट्रेन इस तरह से करते हैं कि जो उनको इश्यूज आ रहे होते हैं दूसरों के साथ, आइदर देयर वर्क प्लेस, देयर स्टडीज, देयर फैमिली इश्यूज, कोई भी इश्यूज आ रहे होते हैं तो वो उस चीज़ों पे बेहतर रिस्पॉन्ड करते हैं अपनी मेंटल जो उनकी कैपेसिटीज़ हैं उनको बढ़ा के उस तरह से। तो लिंग्विस्टिक इट्स अ लिंग्विस्टिक टर्म जिसमें हम ब्रेन की लैंग्वेज में हम सिखाते हैं कि आपने डिफरेंट सिचुएशंस में किस तरह से परफॉर्म करना है। Does it really work? It works because how does it work? It works like लोगों के जो है एंगर इश्यूज बहुत सॉर्ट आउट हो गए हैं। लोगों को बिजनेस से, बॉसेस से, डिफरेंट जगहों पे उनको ऑफिसेज के इश्यूज होते थे तो पीपल स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे। तो जब कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ही अराइज तब होता है जब दोनों सेम थिंकिंग पैटर्न पे, एक रिएक्ट करता है एक रिस्पॉन्ड करता है, वो एक सिचुएशन बन जाती है। सो इफ द अदर पर्सन चेंजेस हिज माइंड और वो रिएक्ट ही ना करे या उसको डिफरेंट एंगल से ले तो आपको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में इट वर्क्स फॉर द स्टूडेंट्स जो पढ़ते हैं और उनको लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इसका लिंग्विस्टिक प्रोग्राम इज वेरी हेल्पफुल फॉर एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। Okay. So just as you were saying that not everyone can become the life coach or maybe the therapist, but by the way, what is the difference between life coach and therapist, and how and from where can you get this training? लाइफ कोच इज़ अ फील्ड, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें यू स्टडी डिफरेंट टेक्निक्स टू मेक थिंग्स बेटर फॉर द पीपल और अ क्लाइंट जो आपको अप्रोच करते हैं। थेरेपी इज़ टोटली अ डिफरेंट फील्ड। इसके अंदर आपको यू हैव टू सी हाउ योर क्लाइंट इज़ एक्चुअली उसको किस तरह से उसके इश्यूज हैं, उसको आपने फिर उसके सर्कमस्टांसेस को देख के आपने उससे हाउ ही हैज़ टू बिहेव उसको आपने बताना होता है, समझाना होता है। Okay, so it means it cannot be in a very generalized way that whatever you have studied. It's not the same. दोनों फील्ड्स डिफरेंट है। दोनों के लिए आपको डिफरेंट तरीके से, ऑल्दो दोनों का एम एक ही है कि आप अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट करें, आप जो है एक अपने इश्यूज का प्रॉब्लम देखें, बट दोनों की टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज डिफरेंट है। So how mind therapy works? माइंड थेरेपी वर्क्स, इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि माइंड थेरेपी में जो है आप अपने माइंड को ट्रेन करते, जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है ना, इट कम्स इन माइंड थेरेपी। तो हमने इस डिफरेंट आगे माइंड साइंसेस की डिफरेंट आगे से फील्ड्स हैं जिसमें हिप्नोसिस है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है, दूसरी और टेक्निक्स हैं। तो ये माइंड साइंसेस में होता है कि आप अपने क्लाइंट्स के और डिफरेंट जगहों पे इश्यूज जो आ रहे होते हैं आप उसको सोल्यूशन उसको बताते हो। Alright, so who you are, by the way, are you a life coach or a psychotherapist? I work as a life coach and I also work as a psychotherapist, जिसमें we have been trained to deal with people's mindset and how to add something good in their habit and how to minimize any bad habit. So Naya, when we see people who are living in abroad, so whenever they face any sort of problem, either it is relating with their finances, with their career, with their business, with their relationship or anything, so they go to the psychiatrist. Okay, so how many fields are there that are being covered by the psychology? Actually, we have only this concept, it is a psychiatrist and we'll go if we had some serious illness. No, it's not. Okay. We had a career counselor, we have life coaches, we have psychotherapists, we have so many other fields. So, and still we are giving awareness to the people to please approach those people for your issues, because हमारे माइंड से बाहर तो ये चीज़ है कि they know the difference. वो अपनी फील्ड में, अब हर किसी को ऑब्वियसली दुनिया में रहते हुए इश्यूज तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी डिफरेंट फील्ड्स में, आइदर इज अ बिजनेसमैन और स्टूडेंट और जो भी इसका चीज़ है। एग्जैक्टली। सो द प्रॉब्लम इज के बाहर तो दे गो टू द पर्सन बिकॉज दे डोंट इवन बिलीव। यहाँ पाकिस्तान में भी ओनली बिलीव इन फिजिकल वेलनेस कि बस वो ठीक है तो आइदर इट्स ओके व्हाटएवर इज गोइंग इन योर माइंड, and you should be taking some medication. Exactly. अगर और वो भी तब जब बहुत बड़ी इलनेस है। नो, वी यूजुअली टेल पीपल कि आप उस बड़ी इलनेस से पहले अपने आप को देखें, आपके कोई भी इश्यूज हैं आप आके डिस्कस करें ताकि वो इलनेस और वो चीज़ें एग्जिस्ट ही ना करें। और ये है कि बहुत ज़रूरी है कोचिंग और ये जो है कंसल्टेशंस एंड ऑल दैट, आई गेस ये चीज़ें बहुत पॉजिटिव इफेक्ट लाती हैं। इवन ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बहुत बड़ी इशू हो। पीपल यूजुअली अप्रोच मी फॉर द लाइक एनी काइंड ऑफ इमोशनल थिंग, कोई भी उनका इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, दे वांट टू गेट आउट ऑफ दैट सिचुएशन। इट्स नॉट
इम्पोर्टेंट कि आपका कोई मेंटल इशू ही हो. लोगों के बहुत फियर्स होते हैं. सम पीपल वांट टू क्विट स्मोकिंग एंड ऑल दैट, तो वो भी अप्रोच करते हैं. तो इस फील्ड के अंदर बहुत सी टेक्निक्स हैं, बहुत से रास्ते हैं जो आपको आपकी जो है वो आपको आपकी बेटरमेंट की तरफ लेकर जाते हैं. इट्स नॉट रिलेटेड टू कि आपको बहुत कुछ शिज़ोफ्रेनिया है या कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. देन लाइफ कोचर्स और ये साइकोथेरेपिस्ट ये एग्जिस्ट इसीलिए करते हैं कि लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करें ताकि वो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लाइफ में रहे. Great. जी. Okay, so as it is related with the mind, and people also face a problem, that is the time management. They always think that whatever they want to do, they cannot do it because of the lack of time. But everybody who is successful or who is not successful, we all have 24 hours a day. So time management courses are also there. So life coach, does he also help for the time management skill for a client or whosoever actually comes to him? बेसिकली टाइम मैनेजमेंट ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. इसमें ये है कि हमारे जो माइंड्स हैं वो बचपन से ही, जो लोग आपने कभी नोट किया हुआ जो लेट होते हैं वो शुरू से ही लेट होते हैं. ठीक है, वो एक उनका एग्जैक्टली वो अपने आप को ट्रेन ही इस तरह से किया होता है कि हाँ ठीक है, खैर है, कोई बात नहीं, थिंग्स विल बी इन आवर हैंड. बट ऐसे नहीं होता. उनकी वो फिर एक हैबिट बन जाती है. तो पीपल यूजुअली अप्रोच अस कि हम बहुत बड़ी फील्ड्स पे काम कर रहे हैं, बड़ी अच्छी पोजीशंस हैं, जॉब्स हैं, बट हमारा टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज हैं. सो हम बेसिकली उनके माइंड को ट्रेन इस तरह करते हैं. इट कम्स इन न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम. हम उनके माइंड को इस तरह से ट्रेन करते हैं उनके सेशंस लेकर कि वो इस चीज़ से वो ऑटोमेटिकली फील करते हैं. उनसे वो टाइम मिस नहीं होता. वो एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं कि उनको फिर ये इशू नहीं होता. उससे पहले उनको ये लग रहा होता है कि शायद उनके बस में नहीं है, उनके बस में नहीं है कि वो इस चीज़ पे कर सकते हैं या ये खुद ही हो जाता है. बट वी ट्रेन देम एंड वी हैव सीन रिजल्ट्स एज वेल. ऑलराइट. सो लिविंग इन पाकिस्तान, वी ऑल नो दैट यहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं, they all face one problem, that they have a dream and their family usually, like their family never supports them कि वो जो करना चाह रहे हैं वो कर लें, क्योंकि वो एक पैटर्नाइज्ड वे पे उनकी फैमिली चलाना चाह रही होती है. लेकिन जिनके ड्रीम्स होते हैं वो ऑब्वियसली उनको बड़ा वो डिस्टर्ब अपनी एक लाइफ को फील करते हैं. उसके अंदर लाइफ कोचर कैसे उसकी हेल्प कर सकता है? लाइफ कोचर्स, सबसे पहले बात है कि लाइफ कोचर्स हमारे पास लाइफ कोचर्स के पास लोग आते ही तब हैं जब वो अपना सारा टाइम गुजार चुके होते हैं. देन दे कम इन, क्योंकि जब लाइफ कोचिंग आपको ज़रूरत होती है या जब आपको चाहिए, व्हेन यू आर यू नो इन योर स्टडी करियर या जब आप कुछ कर रहे होते हैं, तब आप तक उस चीज़ का वो आप एक डायरेक्शन पे चल भी सकते हैं. बट यूजुअली पीपल कम कि हम ये करना चाहते थे लेकिन हो गया ये, अब हमें बताएं. सो उसमें ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हम उनके फिर माइंड को एक उसमें से निकाल देते हैं कि आप इस चीज़ के गेट से निकल आए कि आपको ये करना था. डोंट गो विद टू प्लान्स. आप जिस सिचुएशन में अभी है, जिस फील्ड ऑफ लाइफ में आप अभी हैं, आप अपना प्रॉपर 100% इस फील्ड को दें. सो इट्स ऑब्वियसली हर किसी के साथ होता है कि फैमिली सपोर्ट एंड डिफरेंसेस आते हैं. पेरेंट्स वांट कि भाई ये बच्चे जो लिमिटेड फील्ड्स हैं इसमें, और अब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा फील्ड्स बहुत ज़्यादा वास्ट हो गई हैं. डिफरेंट लोग आर्ट्स एंड इस तरह की फील्ड्स में म्यूज़िक एज अ करियर लेके जाना चाहते हैं और फैमिलीज नहीं परमिशन देती हैं. सो हम उनको फिर उनके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो है काउंसिल करते हैं. Okay, yeah. So just as you were sharing that people don't come before the problem that they are just about to face, they always come after the problem when they face that problem. So what do you think? ये ट्रेनिंग, प्री ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी काम कर सकती है या पोस्ट ट्रेनिंग? इट वेरीज. अब हम लोगों ने अभी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बढ़ गया है. वी यूजुअली कंडक्ट वर्कशॉप्स फॉर स्टूडेंट्स. उनको अभी से अवेयरनेस दे रहे हैं कि यू हैव टू गो टू द लाइफ कोच, यू हैव टू गो टू द थेरेपिस्ट फॉर योर सॉल्यूशंस. द मोर दे विल कंसर्न अपना शो करेंगे थेरेपिस्ट थेरेपी में, और उतना ही आप जो है वो उस चीज़ को बेहतर तरह से इट वेरीज. इसमें कोई उस तरह का नहीं है, लिमिटेड नहीं है. जो लोग बाद में अप्रोच करते हैं वो भी अपने इस चीज़ में से जो है वो बेनिफिट लेते हैं, और जो पहले अप्रोच करते हैं उनकी भी कंडीशनिंग माइंड किस तरह से हो जाती है कि वो मतलब वो वेल अवेयर हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर. So just as you were talking that you have conducted few workshop for the students, so what type of the trainings are you really provided for the students only? लाइफ कोचिंग की अवेयरनेस देते हैं और हम लोग ज़्यादा माइंड थेरेपीज कराते हैं जिसमें स्टूडेंट्स के को कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट किया जाता है. टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में उनको बताया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि किस तरह से
से आपने करना है और उनको बताया जाता है कि आपने लाइफ को प्रायोरिटाइज And कैसे you were करना है। also offering one workshop for the student that was regarding stress management जी। for the thesis work. So जी what जी was बिल्कुल। that? उसमें ये था कि आई हैव नोटिस्ड कि जब व्हेन वी वर स्टडिंग, आज से कुछ अर्सा पहले, पीपल नीड कोचिंग और दे यूजुअली गो टू देयर सीनियर्स इन यूनिवर्सिटीज, और सीनियर्स उनको जिस तरह से भी बताते थे ना कि ऐसे है और थीसिस ऐसे होता है, थीसिस ऐसे होता है, वो उस चीज़ों को लेकर उसको अप्लाई करते थे और उसकी वजह से उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हुई। किसी ने कह दिया कि एडिटिंग बहुत करें, किसी ने कुछ कह दिया, तो वो सो आई बिलीव कि यू हैव टू गो टू द पर्सन। और लोग बहुत नर्वस हो जाते हैं। कोई 15 to 20 मिनट्स का थीसिस का एक इंटरवल होता है जिसमें आपको यू हैव टू एक्ट वेरी कॉन्फिडेंटली, बिकॉज आपने बहुत काम किया होता है अपने थीसिस पे, बट लोगों ने काम तो किया होता है बट उनके अंदर वो एक एलिमेंट कॉन्फिडेंस का मिसिंग होता है। सो माई पर्पज ऑफ एग्जैक्टली माई पर्पज ऑफ डूइंग दैट वर्कशॉप वाज टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस अमंग द स्टूडेंट्स कि आपने अपना जो भी कंटेंट किया है, जिस पे आपने इतनी मेहनत की है, आपने उसको प्रेजेंट भी कॉन्फिडेंस के साथ करना। Yeah, great. What do you think are what is the level of acceptability of these brain-based trainings in Pakistan? अब तो बहुत ज़्यादा है। अब पीपल आर यूजुअली एजुकेटेड एंड दे आर वेल अवेयर कि हाउ दिस ट्रेनिंग्स वर्क, और दे एक्चुअली वांट टू बिल्ड दीज काइंड ऑफ स्किल्स इन देयर लाइफ, बिकॉज आपको जो एजुकेशन सिखाती है यूनिवर्सिटीज एंड ऑल दैट, ये आपको एक थेरेटिकल अप्रोच ज़्यादा इनकी होती है कि नॉलेज एंड स्कोर्स एंड CGPAs एंड दिस एंड दैट। सो दीज वर्कशॉप्स यूजुअली हेल्प इन कैरेक्टर बिल्डिंग, इन आपकी स्किल्स मैनेजमेंट, आपकी कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है आपको। आप तो बेसिकली आई बिलीव कि ये चीज़ें ही आपको डिफरेंट नॉलेज भी चाहिए, बट उतनी ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ें भी होती हैं जो आपको साथ साथ चाहिए। सो अब तो लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, बट स्टिल उस तरह से इतना कॉन्सेप्ट नहीं है लाइफ कोच के पास आने का। लोग वही बात है कि लोग उस चीज़ को ज़्यादा लेते हैं कि अगर कोई सीरियस इलनेस है तो तभी या कोई जा भी रहा होगा तो लोग कहेंगे बहुत बीमार है। And there is also another thing that, just as you were talking, that if someone is facing some sort of emotional problem, so they can also consult a life coach. So don't you think that they are going to think in a way कि उनको अपने secrets reveal करने होंगे, and that is the reason they feel reluctant कि नहीं यार वहाँ पे जाके क्या बताएंगे, अपने past history सारी उनसे share करेंगे, because that's what psychologists do. वो आपसे आप ही के बारे में आपकी life stories पूछेंगे, तो इस वजह से तो नहीं है कि वो इतना comfortable नहीं। I guess people are very open now, वो कोई इशू नहीं है उस तरह से, बट या एक अवेयरनेस ये नहीं है कि आपने जाके किससे क्या बात करनी है। यूजुअली पीपल डिस्कस देयर थिंग्स इन देयर सर्कल विद देयर फ्रेंड्स एंड दे थिंक कि हमने डिस्कशन कर लिया। आइदर इट्स थेरेपी कि जब सबसे पहले लोग हमारे पास आते हैं तो हम सबसे पहले उनको कहते हैं कि प्लीज टेल अस एवरीथिंग वेरी ओपनली, और इट इज एक्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग थेरेपी कि जब खुद ही वो अपनी चीजें बताते हैं तो एक वो दे आर सेल्फ अवेयर ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, वो उनसे भाग नहीं रहे होते। सो आई थिंक कि ये थोड़ी, and they are also throwing away all those negative stuff that they have stored in themselves. This is what I want to say कि बिल्कुल ऐसे ही है कि वो जो है जब खुद से the more आप you tell things to your brain, the more you are aware of it, the more you are aware of it, the more you feel less stress about it. Yeah. और वो सब नेगेटिविटीज निकालने के बाद स्पेस भी होती है किसी पॉजिटिव बात को अब्सॉर्ब करने की। या ग्रेट। सो ये भी मुझे बताओ कि इसको किस तरह से अब्रॉड में इसको किस तरह देखा जाता है? बाहर तो लोग जैसे लोग अपने मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा इस चीज़ का ट्रेंड है कि लोग बहुत ज़रूरी जाते हैं, और दे आर, हमारी सोसाइटी फिर इस तरह से थोड़ी सी शाय है कि दे डोंट गो टू लाइफ कोचेज एंड थेरेपिस्ट, बट बाहर ये है कि बाहर तो लोग जाते हैं, उनको अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों को लेके चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से डिफरेंट है। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मुझे ये भी बता दो कि अगर हम लोगों को लाइफ कोचेज की तरफ अगर हम लोग उनको कहते हैं अट्रैक्ट करवाने की कोशिश करते हैं, तो इज देयर एनी स्पेसिफिक एज, क्वालिफिकेशन, जेंडर who should come and consult with the life coaches? I guess this is the beauty of the therapist and the life coach कि वो हर एरिया ऑफ लाइफ को एड्रेस कर सकता है, हर एज के लोगों को एड्रेस कर सकता है, हर इशू को एड्रेस कर सकता है। ठीक है, हर इशू जिसके अंदर आपको कोई मेडिकल कंसल्टेशन की जरूरत नहीं होती उनको एड्रेस कर सकता है, तो इसके अंदर कोई लिमिटेशंस नहीं है। That's really good. Well, Nayab, thank you so very much for sharing your comprehensive knowledge with us. You're But you know, at the end of this interview, we also have another segment, and in that segment, we are going to ask you 3 riddles. Okay. And if somehow you would manage to answer all those 3 questions, Okay. so in that case, you will win a cup of coffee with the side team. Okay. Okay. So my first question is, now what is something that you can only hold in your left hand but not in your right hand? I don't know. That is your right hand. Okay.
Yeah. Okay. Yeah. So you have missed your coffee, but still. Okay. There are two more questions that I'm going to ask you. The second question is, Okay. you have to name 4 days of the week that start with the alphabet T. Tuesday and Thursday. Yeah. 2. What about the Yeah. other 2? I guess there are two only. No, but my question is, you have to name 4 days of the week. That starts with T. I With the guess alphabet T, yeah. it has to be alphabet T and it starts with T. It starts with the T. I guess there are only two, Tuesday and Thursday. Yeah, and today and tomorrow. Okay. Yeah. All right. So the last question, last riddle. Although you have lost your coffee, but still, I'm so generous. So that's why I'm asking you the third question as well. What is something that has a head and a tail, but no body at all? Head and tail but no body. Coin? Yeah, that's great. But this correct answer has no use. Extremely sorry for that. So that's it for today. Thank you so very much, Naya, for sharing your views with us. And obviously, viewers would also get a lot of knowledge from your words, inshallah. So thank you so very much. You're welcome. Take care. Allah Hafiz. Okay.